Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with Indian Economic Development, Chapter 3. In this lecture, we'll study the difference between strategic and minority sale. Then we'll study the difference between bilateral trade and multilateral trade. And finally, the difference between tariff barriers and non tariff barriers. So, let us start with the difference between strategic and minority sale. Uh, 1991 new economic policy, liberalization, privatization, globalization. A privatization was that we will transfer the ownership of public sector units to the private sector units. अब वो किस तरीके से करनी थी? दो तरीके थे, एक थी स्ट्रैटेजिक सेल और एक थी माइनॉरिटी सेल। अब स्ट्रैटेजिक सेल्स में 51% और मोर स्टेक जो था पब्लिक सेक्टर का, दैट वाज ट्रांसफर्ड टू प्राइवेट सेक्टर। तो जब भी 51% से ज्यादा शेयर आप किसी कंपनी को बेच देते हो, तो मालिक फिर वो कौन हो जाती है? वो कंपनी जिसके पास 51% शेयर्स हैं, क्योंकि अब उसके पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं। तो जब भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के 51% से ज़्यादा शेयर्स किसी को हैंड ओवर कर दिए जाते थे, तो जो ओनरशिप थी पब्लिक सेक्टर की वो अपने आप से ट्रांसफ़र हो जाती थी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के पास बेचा जाए, चाहे वो एक नया पब्लिक सेक्टर को बेचा जाए। तो स्ट्रैटेजिक सेल्स रेफर्स टू द sale of 51% or more stake of public sector units to the private sector. The ownership of public sector unit is handed over to private sector. अब minority sale क्या थी? Minority sale was less than 49% of the public sector unit shares was sold to some private sector या किसी public sector को भी। तो जो existing public sector है उसकी ownership खत्म नहीं होती थी, it used to be continuing with the ownership. So, in minority sale refers to the sale of less than 49% of the public sector units to the private sector. The ownership of public sector units still remain with the government as it holds 51% और मोर स्टेक, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा बड़ी स्टेक हुआ करती थी 51% की से ज़्यादा या 51%। तो जो ओनरशिप हुआ करती थी वो उन्हीं के पास हुआ करती थी। तो स्ट्रैटेजिक सेल में ओनरशिप पास ऑन हो जाया करती थी प्राइवेट सेक्टर के पास। माइनॉरिटी सेल में ओनरशिप पब्लिक सेक्टर के पास ही रहती थी। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी सेल में 49% से लेस शेयर्स बेचे जाते थे पब्लिक सेक्टर के, वेयर स्ट्रैटेजिक सेल में 51% से ज़्यादा शेयर्स बेचे जाते थे पब्लिक सेक्टर के। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल सेल्स ट्रेड, सॉरी। तो बायलेटरल ट्रेड होता है दो कंट्रीज के बीच में, मल्टीलेटरल ट्रेड होता है दो कंट्रीज से ज्यादा के बीच में। सो नाउ बायलेटरल, इट इज अ ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज. This is an agreement that provides equal opportunities to both the countries. Multilateral trade, it is a trade agreement amongst more than two countries. This is an agreement that provides equal opportunities to all member countries in the international market. And the last difference which we have to study is the tariff barriers and non-tariff barriers. तो भाई अब डिफरेंस पढ़ने से पहले एक बार देख लें कि tariff barrier क्या होता है. Tariff barrier can include a customs levy or tariff on goods entering a country and are imposed by the government. Free trade agreement seeks to reduce tariff barrier. Tariff barrier एक तरीके का टैक्स होता है. जो सामान बाहर से आता है, जब उन पे टैक्स लग जाता है तो वो सामान महंगा हो जाता है, और हम कई बार इसको अपनी कंट्री के गुड्स को प्रोटेक्ट, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ बैरियर लगाते थे। लेकिन जब हमने डब्ल्यूटीओ साइन करा, तो फिर हमने ये साइन करा कि हम कंटिन्यूसली टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे। अब नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? टैक्स को छोड़कर, टैरिफ्स को छोड़कर कोई और तरीका जिससे हम किसी की एंट्री अपनी कंट्री में रोक सके किसी प्रोड्यूसर की, उसी को बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। अब नॉन टैरिफ बैरियर कैन इंक्लूड excessive red tape, onerous regulation, unfair rules or decisions, or anything else that is stopping you from competing effectively. Non-tariff barrier can affect all form of goods and services, exports from food and manufactured products
through digital services. अब जो टेरिफ बैरियर और नॉन टेरिफ बैरियर में डिफरेंस है उसको देख लेते हैं एक बार. इट रेफर्स टू द टैक्स imposed on the import by the country to protect the domestic industry. It includes custom duty, export duties, import duties. It is imposed on physical units like per ton or on value of the goods imported. अब नॉन टेरिफ बैरियर क्या होता है? ये ड्यूटीज को छोड़ के जो भी बैरियर होगा वो नॉन टेरिफ बैरियर होगा. It refers to restriction other than taxes imposed on imports by the country. It includes quotas, license. It is imposed on the quantity and the quality of the goods imported. अब देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर. जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बहुत लंबा हो गया. आपको अगर कोई अपना ऑर्डर पास कराना है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फाइल्स को मूव करवाना पड़ेगा. इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन. फिर क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन जिसको हम कोटाज बोलते हैं. फिर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, लाइसेंस लेना पड़ेगा. वैसे तो अब लाइसेंस रहा नहीं, लेकिन फिर भी टू कंट्रोल हम नॉन टेरिफ बैरियर्स को बहुत यूज करते हैं लाइसेंस के थ्रू. देन डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट, प्राइवेसी रिक्वायरमेंट. देर आर n numbers of ways, non tariff barriers through which the trade can be controlled. So I hope all these concepts are clear to you. आप 2-3 बार ये वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी. And like and subscribe the video so that you continuously get the notification of new video. Happy learning.